Hello everyone, this is our first video on this channel, so I will start with my small introduction. I am Raju Kumar Yadav, a qualified cost and management accountant having experience of more than 2 years in the manufacturing industry. Also, I have achieved All India Rank 25 in my semi-final exams. So, our main motive of this channel is to provide you the best tips, tricks or strategy to achieve or clear your examinations, because I believe anyone can become all India ranker, anyone can clear the CMA examination. Just one thing, एक ही चीज की requirement है, that is believe in yourself, follow your strategy, follow your tricks in these competitive exams. Okay, so this is all we discuss in this channel, so please make sure you subscribe this channel, and this is our first video on the course structure. So let's start. CMA course structure has been divided into three parts. Level 1 foundations having 4 paper, level 2 intermediate having 8 paper, level 3 final having 8 paper. So after passing level 3 you will become a qualified cost and management accountant. So now we discuss level wise level, in each level how many chapters there, what was the subject and all we discuss. Okay, so we will start from the foundation. Foundation course have total 4 paper: fundamentals of business law and business economic, fundamentals of financial and cost accounting, fundamentals of business mathematics and statistics, fundamental of business economic and management. So paper we will discuss each paper. Okay, number 1, paper 1 is a fundamental of business law and business communication. They have a total 2 sections. Section 1 business law having 70% and section B business communication having 20%. So business law according to me is a practical paper, बिकॉज कि आप इसमें सब कुछ प्रैक्टिकली थॉट कर सकते हो, लाइक कि हमारा इंडिया में लॉ कैसे बनता है, हमारा पार्लियामेंट कैसे लॉ को पास करती है, ये सब हम जानेंगे चैप्टर 1 में लॉ के। तो ये सब प्रैक्टिकल है। चैप्टर 2 में देखो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। ये क्या है, बेसिकली आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर इंटर करते हो तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, आपको क्या करना है, किस इस लॉ को कंप्लाइट करके करना है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, अभी एक लॉयर हायर करते हो, एडवोकेट हायर करते हो, उन्हें पैसा देते हो, बट आफ्टर रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यू विल डू इट योर सेल्फ ओनली। ओके, एंड इट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द इन रियल लाइफ ऑल्सो। चैप्टर 3 इज अ सेल्स ऑफ गुड एक्ट इन 1930। बेसिकली आप जब क्वालिफाइड हो जाओगे तो आप जाते हो, कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, या फिर मान लो आप अपनी कंपनी ओपन करते हो, तो आप कुछ भी गुड्स सोल्ड कर रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और जो सामने वाला परचेजर है, जो बायर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 बताता है। और एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने गुड्स बेचा मिस्टर बी को, मिस्टर बी रहता है मान लो हरियाणा में, आपको कोलकाता में, कोलकाता से हरियाणा जाते वक्त गुड्स रास्ते में कहीं डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गया, एनीथिंग। ओके, सो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन बियर करेगा लॉस, ये कौन बताता है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। सो अगेन इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम एज वेल एज इन रियल लाइफ, और इट इज बोथ द चैप्टर्स, मतलब लॉ पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। आप एज अ प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ोगे तो बहुत आपको समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा, इंजॉय भी कर पाओगे आप। ठीक है, लास्ट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। दिस चैप्टर डील्स विद द बिजनेस लॉ, हाउ आवर चेक वर्क्स इन रियल लाइफ, how what is bill of exchange, what is promissory note, how they work in the Indian economy. You will learn in the chapter number 4. Again, it is a practical. So come to the section B, business communication. Business communication is purely easy, too easy, because in school हम कहीं ना कहीं ये सब पढ़ के आए हैं। स्कूलिंग टाइम में हम कहीं ना लेटर राइटिंग एंड फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल वी ऑल नो। ओके, सो अगेन स्कोरेबल इज 20%. Come to the paper 2, again fundamentals of business, financial and cost accounting. So आप ये भी अपने स्कूल 11-12 में पढ़ के आए हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस है। आप अगर बात करोगे इसमें, आपको थोड़ा एडवांस और प्लस बेसिक दोनों है इसमें। आप इसमें सीखोगे कि अकाउंटिंग स्टार्ट कब हुई, कैसे हुई, कौन से रीजंस थे, कब करनी है अकाउंटिंग, क्यों करनी है अकाउंटिंग, कैसे करनी है अकाउंटिंग, और कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग से अकाउंटिंग फॉर्मेट डिफाइन किया गया है। तो ये सब आप चैप्टर 1-2 में पढ़ोगे। चैप्टर 3 एज यू नो फाइनल अकाउंट, आपको ईयर एंड पे सारी कंपनीज को या फिर सारे बिजनेसमैन्स को P&L एंड फाइनल अकाउंट बनाना होता है, जो कि हमें चैप्टर 3 25 मार्क्स का है वो बताएगा। क्लियर? Come to the section B, fundamentals of cost accounting.
कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए मेरे पास बहुत बढ़िया एग्जांपल है। सपोज मैं एक गारमेंट शॉप में जाता हूँ और एक शर्ट पिक करता हूँ, शॉपकीपर से पूछता हूँ व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस शर्ट। शॉपकीपर ने बोला कि प्राइस है 1500 रुपीज़ ओनली, सपोज 1500 रुपीज़ ओनली। सो मेरे माइंड में ऑलवेज, मेरे माइंड में कहीं भी मैं प्राइस टैग देखता हूँ या कुछ भी देखता हूँ तो मेरे माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, ये आपको कौन बताता है? ये आपको बताता है कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बता सकता कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, आपको ये बताता है कॉस्ट अकाउंटिंग। सो यू विल लर्न द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट इन द कॉस्ट अकाउंटिंग। अगेन ईजी है, अंडरस्टैंडेबल है। जैसे आप इंटर में जाओगे, फाइनल में जाओगे, इसमें आप कॉस्ट अकाउंटिंग की पूरी अलग से सब्जेक्ट मिल जाएगी जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। कॉस्ट रिड्यूस कैसे कर सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हो सकता है, आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे फॉलो कर सकते हो, बहुत कुछ रहेगा। तो अभी आपका 30 मार्क्स का इंक्लूडिंग इन द मतलब दोनों साथ में, तो ये ईजी है, स्कोरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपको। सो लेट्स मूव टू द पेपर 3, जो कि बच्चों को लगता है थोड़ा टफ है बट एक्चुअली में वो टफ नहीं है। फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। इसमें क्या है बेसिकली आपको सीखने को मिलेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेशियो, टाइम एंड डिस्टेंस, सेट थ्योरी, इंडिसेस का बेसिक सीखने को मिलेगा, परमुटेशन कम्युनिकेशन का बेसिक, क्वालिटी इक्वेशन का बेसिक, ये सब आपको मैथ का क्वेश्चन बताया। मैथ में आपको ये सब सीखने को मिलेगा। मैथ 40 मार्क्स का, स्टैट 60 मार्क्स का। अगेन यहाँ पे मैं एक ट्रिक देना चाहता हूँ। ट्रिक क्या है कि आप सबसे पहले पेपर 3 के लिए सेक्शन बी पे फोकस करो, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस स्टैटिक्स है, 60 मार्क्स का। इजी है, बिजनेस माइंड है आपका है तो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है आपके लिए। ओके, तो आप ट्राई करो 60 में से 60 मार्क्स का पूरा करो। एग्जाम में बैठो तो 60 में से 50 आपका आना ही चाहिए। 50 इधर से आ गया और बैलेंस 20 के लिए आप सेक्शन ए की तरफ चले जाओ। तो आपका अगर 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करते हो एग्जाम में, एनी हाउ आपका 60 प्लस आएगा ही। दिस इज द बेस्ट ट्रिक। ये मैंने भी फॉलो किया था अपने टाइम में टू क्वालिफाई था ये मैथ पेपर, क्योंकि मैथ जनरली क्या होता है, कॉमर्स स्टूडेंट जो होते हैं मैथ बैकग्राउंड में उतने मतलब नहीं होते थे जनरली, तो इसलिए मैं ये स्ट्रेटेजी बहुत इफेक्टिव है। चलो नेक्स्ट टू द पेपर 4, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट। इसमें क्या सेक्शन है, अगेन बिजनेस इकोनॉमिक, जो हम ऑलरेडी स्कूल 11-12 में पढ़ के आए हैं, सेम आपको यहाँ भी मिलेगा। इसमें आपको समझने को मिलेगा इंडियन इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, मनी मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, हाउ दे विल वर्क इन द रियल लाइफ। आपको थोड़ा सा एक बेसिक समझने को मिलेगा, जो ऑलरेडी आप करके आओ 11-12 में, तो अगेन ईजी है। और फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए आप अगर 11-12 में मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट था आपका, तो अगेन ये पूरा सेम है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, इजी है। 100 मार्क्स आपके लिए ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा आपको। एक्स्ट्रा एफर्ट किसने नहीं करना, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना है बिजनेस लॉ में, फर्स्ट पेपर 1 में और पेपर 3 में। पेपर 2 और पेपर 4 आप देखोगे तो ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं पढ़ के आए हो। चलो ठीक है। सो वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, 9 to 10 मिनट्स की हो गई है, तो इंटर और फाइनल का मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में दे दूंगा, सिलेबस पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से। सो ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, आप अगर करने बैठते हो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर आप पढ़ने बैठते हो, करते हो कंसिस्टेंसी से, आप रैंक अचीव कर सकते हो। ठीक है, चलो कीप स्टडी, कीप ग्रो, ऑल द वेरी बेस्ट। होप यू लाइक आवर फर्स्ट वीडियो। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।